morning, children. Today we will continue with the same lesson, Expert Detectives. Yesterday we have discussed that in this lesson, the three children, the narrator, his younger brother Nishad and sister Maya, they become expert detectives. Their mother is a doctor with her clinic. Mr. Nath, the principal character and who lives in Shankar's house alone, is under her treatment. Ramesh takes tea and meals from the restaurant to Nath's room. Now the children go ahead to collect information about Nath. They think Mr. Nath is a mysterious person. He has no friend there. Nishad has a bit of sympathy for Nath. His approach in this case is sensible. So let's see what happens next. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" Children, yesterday I have told you that Nishad went to Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly." Now the man had opened it and asked him, "Lost another marble?" He had obviously recognized my brother. "No," said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. क्या किया? तो निशाद ने बोला, नहीं, मेरी मार्बल लॉस नहीं हुई है। फिर उसने क्या किया? तो उसने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर उनको चॉकलेट दी। Did you get a chance to peek into the trunk? 7, I asked. Now, I told you that here I refers to the narrator. So, the narrator asked Nishad, did you get a chance to peek into the trunk? जब तू वहाँ पे गया था तो तूने वो ट्रंक देखने का चांस तुझे मिला था? निशाद looked disappointed. He didn't even ask me in. He said, then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो जब मैंने पूछा, मैंने मीन्स नरेटर ने, जब नरेटर ने पूछा कि क्या उनके ट्रंक में झांकने का चांस मिला था तुझे? निशाद निराश दिखा। उस व्यक्ति ने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं बोला, वो बोला। फिर वह मुस्कुराया। फिर उसने क्या बोला? आई नोटिस वन थिंग। उसने एक बात नोटिस की थी। मैं उस रेस्तरां में गया जहाँ रमेश काम करता है और उससे बातें की। हियर निशाद टॉक्स टू हिम, टू रमेश। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। नाउ क्या बोला? उसने बोला कि ये काम तूने अच्छा किया मिस्टर जासूस। मैं बोला, मीन्स नरेटर ने बोला, उसको पीठ पर थपकी देते हुए कहा, मैं आशा करता हूँ कि तुमने रमेश से पूरी जानकारी ले ली होगी। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. तब जो 7 मीन्स निशाद जो था वो खुश दिखा। He looks pleased. उसने क्या बोला? उसने बोला कि रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ के लिए एवरी मील मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग एंड नून, वो भोजन लेके जाता है, उसके साथ साथ 2 कप चाय भी ले जाता है। देन रमेश टोल्ड दैट मुझे ध्यान नहीं देता कि नाथ क्या खाते हैं, हमेशा वही भोजन होता है, 2 चपाटीज, सम दाल एंड वेजिटेबल। मिस्टर नाथ नगद भुगतान करते हैं और अच्छी बख्शीश भी देते हैं। हियर ही सेड टिप्स वेल, टिप्स मीन्स बख्शीश, वी कैन से इट रिवॉर्ड ऑल्सो। देन रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, Maya. 7 added,
almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. अब निषाद ने एक और स्ट्रेंज थिंग बोली. उसने क्या बोला कि एवरी संडे, वो रमेश ने बोला कि एवरी संडे मॉर्निंग में मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच जाते हैं और सेम पर्सन उनके साथ दिखता है. वो पर्सन उसका अपीयरेंस जो है, उसके इंट्रोडक्शन देते हुए रमेश बोल रहा है, वो जो पर्सन है वो टॉल, देन वाइटिश, मजबूत और चश्मे पहने रहने वाला है. रमेश बताता है कि वह व्यक्ति तो बातें बहुत करता है, पर मिस्टर नाथ ऑलवेज चुप रहते हैं. ही हार्डली स्पीक्स. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द कुक. अब नरेटर ने बोला, निषाद शाबाश, चूँकि अब हमने अपनी जांच पड़ताल में कुछ प्रोग्रेस की है, हमें बैठकर उन तथ्यों का किसी विशेषज्ञ जासूसों की जैसे विश्लेषण करना होगा. हम उस अपराधी को फांस लें. हाउ यू गो ऑन माया, 7 साइड. अब 7 ने थोड़ा सा सैड वॉइस में बोला. साइड मीन्स डिसअपॉइंटमेंट. उदास स्वर में बोला. क्या बोला? तुम जैसा चाहो माया. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी. आई रिपोर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स yesterday? He looked like any man on the street. निषाद looked doubtful. अब क्या बोला कि तुम किस प्रकार कल्पना कर सकती हो कि वह अपराधी है, वह तो इतना आम व्यक्ति दिखता है. तब माया ने क्या बोला? क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी. जो अपराधी होते हैं वो ऑर्डिनरी दिखते हैं, साधारण दिख सकते हैं, बट साथ में वो कैसे होते हैं? चतुर भी होते हैं. क्या तुमने अखबार में कल एक हैदराबादी सेंधमार का चित्र देखा था? वो सड़क पर जा रहे किसी भी व्यक्ति की भांति ही दिख रहा था. निषाद का संदेह बना रहा. निषाद लुक डाउटफुल. द मॉनसून ब्रॉक द नेक्स्ट डे. नाउ अगले दिन मॉनसून सीजन आ गई थी. डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग मीन्स जब बिजली होती है तो बिजली की चकाचौंध को हम बोलते हैं फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग. देन रोवरिंग रॉल्स ऑफ थंडर मीन्स थंडरिंग ऑफ क्लाउड. जब बादलों की गर्जना होती है वी कैन से इट रोवरिंग रॉल्स ऑफ थंडर. तो क्या हुआ? तब बिजली की गर्जन की चमक तथा बादलों की तीव्र गर्जन के साथ बारिश तथा सड़कों पर बाढ़ सी आ गई. School was to have reopened after the summer holidays. अब समर हॉलीडेज के बाद स्कूल भी खुलता था, पर पानी से लबालब सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चल पा रहा था और स्कूल में भी छुट्टी कर दी गई. Roars and there was an unexpected holiday. I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो नरेटर ने सोचा, आई थॉट मीन्स नरेटर ने सोचा, तो नरेटर थॉट कि मैं समय का उपयोग लाभकारी तरीके से करूँगा. मैं अपने शयन कक्ष में डेस्क पर बैठा था, सामने एक बड़ा सा कागज रखा था. नाउ हियर पार्ट 1 वी हैव completed. Now we will discuss part 2 in next session. Till then, take care everybody. Bye. Thank you. Have a nice day.